Good afternoon, children. Coming back to literature class. In my last session, I have told you that Desiree had a baby and she was very happy that she is having a nice baby boy. Even when she got married, she was not accepted. But later on, her husband's love towards her forced everyone, or rather, he imposed that he is going to insist his husband, his family members to accept Desiree. Anyways, they had a nice baby boy. So let's start what happened after that. What Desiree said was true. Marriage and later the birth of his son had softened Armand Aubigny's imperious and exacting nature greatly changed. नेचर और जो एटीट्यूड था उस बच्चे की तरफ या डिज़ायरी की तरफ वो चेंज हो गया बच्चे के आने के बाद और वो भी लड़का. वी ऑल नो दैट इन आवर सोसाइटी बॉयज़ baby boys specifically they are having a different outlook or a different presentation, different acceptance. We all know that. So this was what made the gentle Desiree so happy, for she loved him desperately. She was deeply in love with the baby in a very high manner. Okay. When he frowned, she trembled but loved him. When he smiled, she asked no greater blessings of God, but Armand's dark, handsome face had not often been disfigured by frowns since the day he fell in love with her. So slowly and steadily, Armand was falling in love with Desiree because Desiree has given a very nice baby boy to Armand. Okay. When the baby was about 3 months old, so the days were passing by. दिन बीत रहे थे. बच्चे को लेकर वो लोग खुश थे, अच्छे थे, अच्छे दिन जा रहे थे. 3 महीने का जब हो गया था बच्चा, तो वन डे डिज़ायरी को लगा that there is something wrong. Desiree awoke one day to the conviction मतलब बहुत दिनों से एक चीज़ को देखने के बाद जब एक कंक्लूजन में हम लोग पहुँचते हैं, we come to a decision, that is conviction that there was something in the air menacing her peace. कुछ एक है एटमॉस्फेयर में या आसपास के एरिया में या घर के एनवायरनमेंट में जो उसको कुछ खरोच रहा है, which is disturbing her mind. It was at first too subtle to grasp. It had only been a disquieting suggestion, an air of mystery among the blacks, unexpected visit from far off neighbors who could hardly account for their coming. पहले उसे लगा कि बाहर के लोग आ रहे हैं, बिना बोल के आ रहे हैं, सो इसीलिए उसको कुछ बुरा लग रहा है. शी इज़ फीलिंग बैड, उसे ख़राब लग रहा है. लेकिन बाद में उसे लगा कि नो, ये रीज़न नहीं है, कुछ और बात है जो मुझे खटक रही है. समथिंग इज़ हिटिंग माई माइंड बट आई एम नॉट गेटिंग इट आउट. Then a strange and awful change in her husband's manner, which she dared not to ask to explain. When he spoke to her, it was with averted eyes from which the old love light seemed to have gone out. जिस प्यार से उसका हस्बैंड उसे देखता था, उससे बात करता था, उसे अप्रोच करता था, वो बिल्कुल अलग हो गया. He was looking at her, but in a moved out eyes. मतलब जब आप किसी को देखना नहीं चाहते तो क्या कैसे बात करते हो? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तुम ये कर लो, मैं बाद में बात करूँगा. ठीक है, गो एंड डू इट. मैंने यू जस्ट डोंट वांट टू सी द फेस. इसी तरह से उसका हस्बैंड भी उससे बात कर रहा था. शी वॉज स्ट्रेंज. अरे इतना अच्छा प्यार था हम दोनों में. देयर वॉज सच ए नाइस एडजस्टमेंट. ही वॉज डीपली इन लव विद मी. फिर अचानक क्या हो गया? बट शी वॉज नॉट हैविंग द गट्स, और इतना पावर उसमें नहीं था या फिर इतना कैपेसिटी नहीं है कि था कि वो सामने जाके पूछे कि क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो. He absented himself from home, and when there avoided her presence and that of her child without excuse, and the very spirit of Satan seemed suddenly to take hold of him in his dealings with the slaves, Desiree was miserable enough to die.
अचानक से वो बहुत फेरोसिस हो गया, जैसे कोई भूत उसके अंदर आ गया है, पिशाच। ही वॉज एक्टिंग एज इफ ही वॉज अ सैटन, ही वॉज अ evil spirit। इस तरह से उससे बात कर रहा था और अचानक ब्लैक स्किन पीपल को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा था। ही वॉज डूइंग समथिंग मिस्चीवियस विद देम और डिज़ायरी को बहुत बुरा लग रहा था। उसको लग रहा था दैट आई शुड गो एंड कमिट सुसाइड, क्योंकि इस इंसान को मैं पहचानती नहीं हूँ। वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। शी सैट इन अर रूम वन हॉट आफ्टरनून। एक दिन दोपहर को वो अपने कमरे में बैठी थी। इन हर पायगनर लिस्टलेसली, पायगनर मतलब एक लूज गाउन जो जस्ट टू फील यू कंफर्टेबल इंसान पहनता है। लिस्टलेसली मतलब विदाउट एनी, जैसे इंसान देखता रहता ना बाहर की तरफ, दैट एज इफ द पर्सन इज लाइंग समवेयर एल्स, है कहीं और, उसका बॉडी यहाँ पर है बट दिल कहीं और है। ड्रॉइंग थ्रू हर फिंगर्स द स्ट्रैंड ऑफ अ लॉन्ग हेयर, अपने ब्राउन हेयर को इस तरह से उंगली से खींच खींच के बाहर निकल रही थी। द बेबी हाफ नेकेड, बच्चा जो सोया हुआ था बिस्तर पे वो हाफ नेकेड था क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो जस्ट वन लोअर पार्ट वॉज कवर्ड अप। शी वॉज लाइंग ऑन द mahogany बेड। mahogany इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव वुड, जैसे शैगुन काठ होता है ना, उसी तरह का बहुत एक्सपेंसिव वुड है। और इन फॉरेन कंट्रीज़ इन दोज डेज बहुत अमीर लोगों के घर में ये दिखता था, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अमीर का बेटा है, सोया हुआ है। वन ऑफ द ला ब्लैंकीज लिटिल क्वाड्रोन बॉय, एक छोटा सा लड़का हाफ नेकेड टू, वो भी वैसा ही था क्योंकि वो गरीब था, उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने पूरे शरीर को ढक सके। स्टूड फैनिंग द चाइल्ड स्लोली, फैनिंग हवा कर रहा था, किससे? पीकॉक फेदर्स से। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर इन द नेक्स्ट पेज, आई एम शोइंग यू, यू सी, ये देखो, ये पीकॉक का फेदर है, ये है बच्चा सोया हुआ, यू कैन सी, एंड डिज़ायरी इज सिटिंग ओवर हियर, और ये है बच्चा और ये है वो हाफ कपड़ों में, एंड दिस इज़ द फैन ही वॉज गिविंग एयर टू द बेबी। Desirie's eye had been fixed absently and sad upon the baby। वो बच्चे की तरफ देख रही थी लेकिन उसका दिल बहुत उदास था। उसकी आंखों से पता चल रहा था that she is very disheartened, she is not happy। She was striving to penetrate the threatening mist that she felt closely about her। सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया, मतलब she was trying to find out the reason कि अचानक उसके हस्बैंड को क्या हो गया। She looked from her baby to the boy who stood beside him and back again over the over। एक बार बच्चे की तरफ देख रही थी, एक बार उस लड़के की तरफ, फिर वापस बच्चे की तरफ। शी वॉज जस्ट, हर आइज वेयर गोइंग फ्रॉम बेबी टू द बॉल, अगेन बेबी टू द बॉय। इट वॉज अ क्राई दैट शी कुड नॉट हेल्प। पता नहीं क्या चल रहा था उसके अंदर, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, विच शी वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ हैविंग अटर्ड। जो वो बोल नहीं पा रही थी लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, समथिंग वॉज गोइंग ऑन। द ब्लड टर्न लाइक आइस इन हर वेन्स, उसके शरीर में खून जैसे बर्फ़ हो गया। शी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग एंड क्लामी मॉइस्चर गैदर्ड अपॉन हर फेस। और बीट जब आप बहुत टेंशन में होते हो तो मुंह में पसीना आ जाता है, तो वैसे सारा मुंह पसीने से तर हो गया। शी ट्राइड टू स्पीक टू द लिटिल क्वाड्रन बॉय बट नो साउंड वुड कम एट फर्स्ट। उसने कोशिश किया कि वो उस लड़के से बात करे जो हवा कर रहा था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। He laid aside the great soft fan and obediently stole away over the polished floor on his bare tiptoes। वो खड़ा था, उसके खाली bare मतलब खाली पाँव में हवा कर रहा था। She stayed motionless with gaze riveted upon her child and her face picture of fright। वो डर के मारे इस तरह से अपने बच्चे की तरफ देख रही थी कि क्या हो गया है, क्यों इसके पापा इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, What's going on? प्रेजेंटली हर हस्बैंड एंटर्ड द रूम, तभी उसके हस्बैंड अंदर आए एंड विदाउट नोटिसिंग हर, उसको इम्पोर्टेंस ना देते हुए, वेंट टू अ टेबल एंड बिगैन टू सर्च सम पेपर्स विच कवर्ड इट। घर में आए, कमरे में आए, उसकी तरफ देखा भी नहीं, डिज़ायरी की तरफ, और सीधा टेबल की तरफ चले गए और कुछ खंगालने लगे एज इफ कुछ ढूंढ रहे हैं। अरमंड, शी कॉल्ड टू हिम इन अ वॉइस विच मस्ट हैव स्टैब्ड हिम
if he was human. जोर से बोली आर्मंड, बट ही डिड नॉट नोटिस, लेकिन उसने कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आर्मंड, शी सेड अगेन, वापस बुलाई। देन शी रोज एंड टॉटर्ड टुवर्ड्स हिम, फिर उठी और उसकी तरफ सीधे चल के गई। आर्मंड, शी पैंटेड वंस मोर क्लचिंग हिज आर्म, उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ, उसको घुमा के अपनी तरफ बोली, आर्मंड लुक एट आवर चाइल्ड, अपने बच्चे की तरफ देखो। व्हाट डज इट मीन, टेल मी, इसका मतलब क्या है, तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। He coldly but gently loosened his fingers from his arm and thrust the hand away from him. जैसे इस तरह से she was holding, उसने हल्के से हाथ हटा के ऐसे झटका दे दिया, as if I don't want to talk with you. Tell me what it means. वो चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम ये। It means that the child is not white. It means that you are not white. जब वो इस तरह से चिल्लाई तब आर्मंड ने बोला, इसका मतलब बच्चा गोरा नहीं है, इसका मतलब तुम गोरी नहीं हो, मतलब तुम दोनों स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते हो और मैं तुम लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकता। कितनी बुरी बात है। वी आर रीडिंग, वी आर मेकिंग आवरसेल्फ एजुकेटेड, वी आर मेकिंग आवरसेल्फ कल्चर्ड, वी आर लिविंग इन अ सो कॉल्ड कल्चरल, एजुकेशनल एंड पॉलिश्ड सोसाइटी, और ये हमारी सोच है। इंसान को उसके स्किन के कलर से हम लोग जज करते हैं। अगर गोरा है या गोरी है तो बहुत अच्छा, अगर काला है या काली है तो ईश, शी इज़ ब्लैक। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कम्प्लेक्शन इज़ नॉट इन आवर हैंड एंड इट इज़ नॉट द कलर दैट कीप्स डिवाइड अ पर्सन फ्रॉम वन अनदर, इट इज़ द क्वालिटी दैट इज़ काउंटेड। एनीवेज, this is the chapter till now I have completed, and one more page is 1.5 pages are left. Go through this part. I'll be back with you very soon with the last part of explanation of this lesson. Okay children, thank you.